ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਛਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀਓ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੂਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਦਰਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਲਾਇਰ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, MP ਹੈ, MLA ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਾਨਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੱਸ ਵੀ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜੋ ਔਰਤ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੱਸ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਧੁੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਇਲਮਾ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ MP, MLA
ऐसे ऐसे औरत के प्रति, औरत की निंदा के प्रति बड़े कई बार जो है वो व्याख्यान करते रहते हैं, या बड़े कई बार जो है चिंताजनक शब्दावली जी वरतते रहते हैं, बड़ी बार सुने। इत्थे तक कि जिन्होंने विटो पावर अमेरिका कहा जाता है, अमेरिका का प्रेजिडेंट, एक प्रेजिडेंट, उसकी सैकटरी ने उसके उपर ये इल्जाम लगाया कि इसने मेरे नाल छेड़छाड़ की है। और ये भी असीं देखते हैं जो करोड़पति साधु संत जिहड़े प्रभु स्तुति के गीत गाते रहते स्टेजां ते चढ़ के, ये भी असीं खबरां विच न्यूज़ चैनलों में देखते हैं कि ये नैतिकता की खड्ड दे विच जिहड़ा ये डिगे हुए हैं। जे असीं साधारण समाज की गल करिए, साधारण मिडल क्लास की गल करिए, तो उसदे विच भी औरत जिहड़ी है अज भी जलालत भरिया जिहड़ा उसका जीवन दाज के प्रति उसनूं सुसाइड करना पैंदा है। इस दे नाल असीं ये भी खबर सुनते रहने हैं कि पति ने शराब के नशे दे विच या अमीरी के नशे दे विच वो भी औरत नूं कुटमार की है। ये भी सुनते रहने हैं कि 3 साल दीयां बच्चियां तो लैके 80 साल तक जिहड़ा औरत के नाल बलात्कार हो रहे, कालजां विच, स्कूलों विच, ऑफिस विच असीं रोज़ नित जिहड़ियां औरत दीयां छेड़छाड़ दीयां खबरां सुनते रहने। और जो धार्मिक समाज की गल करिए, ये तो है साधारण समाज की गल, जो धार्मिक की गल करिए, धार्मिक समाज की गल करिए, उसदे विच भी कई ऐसे धर्म हैं जिस दे विच औरत नूं जिहड़ा है वो दर्जा मान प्राप्त नहीं दिता जाता, या जिहड़ा एक धर्म विच ऐड होने वास्ते, धर्म दे विच दाखल होने वास्ते कई धर्मां दे विच औरत नूं वो हक नहीं है जो पुरखां नूं हक है, या औरत कई धर्मां विच उपदेशक नहीं बन सकती, प्रचारक नहीं बन सकती, कई धर्मां दे विच ऐसा भी है। जो असीं पढ़े लिखे वर्ग की गल करिए, जो असीं एजुकेशन की गल करिए, अज लिटरेसी के दौर की गल करिए, जी उच्च क्लास फैमिलियां की गल करिए, उच्ची जात वालियां की गल करिए, वो भी असीं खबरां सुनते रहने हैं कि औरत नूं जिहड़ा एक इस्त्री नूं, एक वूमैन नूं होटल दे विच जहर दे के मार दिता गया, या तंदूर विच साड़ दिता गया, या औरत जिहड़ी है उसनूं मजबूर किया गया, बैटमैन टू सुसाइड किया गया, उसनूं जिहड़ा वो फांसी ते चढ़न वास्ते मजबूर हो गई, वो पखे दे नाल जिहड़ी है चढ़न वास्ते मजबूर हो गई। ये भी असीं खबरां सुनते रहने। और ये सारा कुछ इसका जो पिछोकड़ देखिए, इसका कारण की है कि अज तक कुछ प्रतिशत औरतों को छोड़ के, कुछ परसेंट छड़ के अज भी जी है औरत के नाल वही सलूक किया जाता है जो सदियां पहले किया जाता सी। और इसका जिस वक्त कारण देखा जाए, इसका सब तो वड्डा कारण है धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकां, जिहड़े पश्चिम देश के वैस्ट के जिहड़े फिलासफर चिंतक, उन्हों का यह रवैया कि मर्द की जिहड़ी है, पुरख की जिहड़ी है, मनुख की जिहड़ी है, ये जिहड़ी है इसकी जिहड़ी है सुपीरियरिटी रहनी चाहिए है। बंदा जिहड़ा अपने जिहड़ा मर्द प्रधानी समाज कायम रहना चाहिए, उसनूं कायम रखने वास्ते, मर्द प्रधान समाज नूं कंटिन्यू रखने वास्ते ये सारा कुछ जो है किया गया। वेदां तक जो असीं हुण ग्रंथां की गल करिए, क्योंकि जब तक असीं इन्हां ग्रंथां की गल नहीं करांगे तो सानूं जिहड़ा एक मान नहीं महसूस होएगा, औरत नूं सिख धर्म दे विच एक मान महसूस नहीं हो सकता। वेदां तक औरत नूं सत्कार दिता जांदा सी, लेकिन जदों स्मृतियां आईयां, जदों पुराण आए, उसके बाद औरत नूं धार्मिक काम वास्ते या धार्मिक पुरुष वास्ते हानिकारक समझना जाना शुरू कर दिता गया। जिहड़ी मनु स्मृति है, जिसनूं मानव धर्म शास्त्र कहा जाता है, वो लिखता है, कहता है कि औरत बचपन तो लैके ते बुढ़ेपे तक जिहड़ा पुरख के अधीन रहनी चाहिए। वो कहता है कि बचपन दे विच औरत जिहड़ी है अपने पिता दे, जवानी विच पति दे, अते बुढ़ेपे दे विच अपने पुत्र दे अधीनगी कबूल करनी चाहिए है। जो गल कहणगे, जो पिता कहेगा, जो पति कहेगा, जो पुत्र कहेगा, उसनूं वो मनना पवेगा, उसका वो विरोध नहीं कर सकती। ये मनु स्मृति कहती। अगे मनु लिखदा जाके कहता है कि औरत दे जिहड़े धर्म संस्कार जिहड़े ने ये वैदिक वेद मंत्रां तो बगैर किए जाणगे, ये किए जाने चाहिए। हुण औरत नूं वेद मंत्रां दा अधिकार नहीं है, इस करके औरत जिहड़ी है ये अपवित्र मनी जाएगी, क्योंकि ये वेद मंत्र नहीं पढ़ सकती। और अगे जाके वो गल कहता है, मनु स्मृति कहती है, कहती औरत दे वास्ते जिहड़ा विआह संस्कार है, विआह जिहड़ा मैरिज है, समझ लो ये इहदे वास्ते जनेऊ संस्कार है। औरत वास्ते जिहड़ा पति की सेवा करनी है, ये समझ लो औरत वास्ते एजुकेशन है, गुरुकुल है। तो जिहड़े घर के काम काज हैं औरत वास्ते ये समझ लो ये अग्निहोत्र है, ये हवन है। मतलब कि मनु स्मृति के अनुसार औरत जिहड़ी है ना वो जनेऊ धारण कर सकती है,
ना औरत एजुकेशन लै सकती है। इन्हां दी समृतियां विच मनु समृति विच गल लिखी है। तो ना ही औरत जिहड़ी है वो हवन कर सकती है। असीं देखिया एजुकेशन तो इन्हां नूं हुण जिहड़ी है दुनिया नूं देख के देनी पैंदी है। दुनिया दे जो है इस अज के वक्त दुनिया की दौड़ देखिए, अगर ये धर्म शास्त्रां दे उपर जाण औरत नूं एजुकेशन भी ना देण, ना औरत जनेऊ पा सकती है, ना औरत जिहड़ी है वो हवन कर सकती है। इस बाद पुराणों की गल करिए, पुराण कहते हैं कि औरत नूं पति नूं परमेश्वर करके मनना चाहिए। ये पुराण कहते तो उन्होंने पद्म पुराण में लिखे है कि पति चाहे लंगड़ा होवे, चाहे लूला होवे, चाहे अनपढ़ होवे, चाहे कोड़ी होवे, चाहे डाकू होवे, चाहे चोर होवे, चाहे जुआरी होवे, चाहे शराबी होवे, औरत ने पति नूं परमेश्वर करके ही मनना। ये पद्म पुराण दे विच गल लिखी हुई है। अते इस दे नाल नाल जिहड़ा इन्हां दा वो सिस्टम है देवदासियां वाला, देवदासियां मंदिरां दे विच जिहड़ा शिव पुराण कहता है कि हर मंदिर दे नाल एक नाच खाना होना चाहिए। शिव पुराण विच लिखिया कि नाच खाना होए, उहदे विच ये औरतां जिहड़ियां सन, हिंदू परिवार दी औरतां ये देवदासियां दे तौर ते दित्तियां जांदियां सन। तो इस करके जिहड़ा डॉक्टर राधा कृष्ण है फिलासफर, जिहड़ा वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी रहा है, वो ये गल कहता कि ये जिहड़ी देवदासियां वाली प्रथा पता नहीं कित्थों शुरू हुई है, लेकिन इस प्रथा का जिहड़ा है इस प्रथा नूं बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इस प्रथा के कारण विचार बड़ा ज़्यादा फैल गया। इस करके जो पुराने मंदिरों के अजे भी कहा जाता है, अजे भी उन्होंने एक कमरा उन्होंने देवदासियों का नाच खाना रखा जाता। इस दे नाल नाल जिहड़ा सती सती की प्रथा जिहड़ी है, ये भी उस वक्त औरत नूं जिहड़ा है पति दे नाल सड़ना पैंदा सी, पति दे नाल उन्होंने जिहड़ा करना पैंदा सी। और इस दे नाल नाल औरत जिहड़ी है वो दूसरा विआह नहीं सी करवा सकती। अगर करवा सकती सी उहदे वास्ते बड़ी कड़ी मेहनत तो उन्होंने निकलना पैंदा सी। मेहनत की सी कि 6 महीने उसनूं जमीन ते सोना पैंदा, 6 महीने जमीन ते सो के कर्म धर्म करके उसके बाद पति उसनूं कहंदा सी कि तू मरे हुए पति वास्ते संतान जिहड़ी है पैदा करनी है, फिर विआह करना पैंदा सी। ईवन कि जिहड़ा पुरख है, जिहड़ा मनुख है, उसके वास्ते वो एक तो वध बीबियां रख सकता है, एक तो वध औरतां रख सकता है, लेकिन औरत नूं जिहड़ा इस तरह दा जिहड़ा बिल्कुल जिहड़ा उन्होंने मनाही है कि 2 इस्त्रियां नहीं रख सकती। ये पुराना तो समृतियां तो ये सारा कुछ पढ़ के इसी करके जिहड़ा गोस्वामी तुलसीदास है वो ये गल लिखदा है कि औरत नूं स्त्री नूं हमेशा दबा के रखना चाहिए। ढोल गवार शूदर और नारी ये सब ताड़न के अधिकार इन्हां तो महाभारत में भी औरत नूं पाप करके मन्निया गया। हुण जदों असीं बाकी दे धर्मां वाल अध्ययन करिए, जिहड़ा जैन धर्म है, जैन धर्म कहता कि औरत कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती, कभी भी नहीं, चाहे वो बड़े वधिया काम करे। दिगंबर जैन कहता है कि औरत चाहे बड़े वधिया कर्म करे, चाहे बड़ी वड्डी भगती करे, चाहे सारे घर के काम करे, लेकिन उसनों मुक्ति प्राप्त करन वास्ते एक बार फिर मनुखा जन्म च आना पेगा। ये जैन धर्म का व्यू है। जो बौद्ध धर्म की गल करिए, बौद्ध धर्म भी अपने धर्म के विच औरतां नूं आउण दे लई हानिकारक समझदा है। वो कहता जिस वक्त औरतां भी भिक्षुआं दे विच शामिल हो गई तो समझ लो बौद्ध धर्म का अंत है। तो वो कह रहा है, वो धर्म कह रहा है जिसनों एशिया का चानन कहा जाता है। इसके बाद योग मत की गल करिए, जिसका हिंदुस्तान में बड़ा पहले प्रसार होया, हुण फिर प्रसार होना शुरू हो गया योग मत का, योगियां का, जिसनों गोरखनाथ ने चलाया। तो गोरखनाथ कहता ये बगियाड़न है, इन बगियाड़न त्रै लोई खाई। फिर इन्होंने 3 लोगों को औरत ने नष्ट करके रखा हुआ है, इस करके इनू धर्म तो दूर रखना चाहिए। जो असीं इस्लाम की गल करिए तो इस्लाम दे विच औरत उपदेशक नहीं बन सकती, इस्लाम दे विच औरत नमाजियां की गवाही नहीं कर सकती। कुरान दे विच लिखिया कि पति कमा के आंदा तो पति नूं हक है औरत के उपर राज करन दा, औरत दे उपर हुक्म चलाउण दा पति नूं हक है। इस दे नाल नाल औरत नूं भुरके विच रहना पेगा। इस दे नाल नाल औरत नूं होर नीचा दिखाउण वास्ते की है कि 2 औरतां की गवाही एक मर्द के बराबर है। ये इस्लाम धर्म के विच लिखिया। ईसाई धर्म की गल करिए तो सेंट पॉल कहता कि औरत का धार्मिक पुरुष जिहड़े ने इन्हां नूं औरत तो दूर रहना चाहिए। ये जरूरी है कि जिहड़ा धार्मिक पुरुष है औरत नूं छूए भी ना। अते वो ये गल कहता है कि सारे पापां दा साधन ते सोमा जिहड़ा औरत है, इस करके औरत जिहड़ी है धर्म कर्म तो औरत नूं दूर रखना चाहिए। ये ईसाई मत कहता। तो यहूदी जिहड़े ने उन्हां दी बच्चियां दी अरदास हुंदी है कि हे परमात्मा, ये खुदा, मैं तेरा बड़ा शुक्रगुजार हाँ
कि ना तू मैनू काफर पैदा किया ते ना तू मैनू औरत पैदा किया। ये यहूदियों की अरदास है। और बड़िया वड्डियां वड्डियां कंट्री जिहड़ा चाइना वीटो पावर है, थोड़ा समा पहले तक औरत नूं लोहे के बूट पाने पैंदे सन, लोहे के बूट, कि ये औरत जिहड़ी है ये नीवी रहे तो शान के नाल ना टुर सके। जापान दे विच भी औरत की एजुकेशन दे पर हुणे थोड़ी देर पहले पाबंदी हटी। ये सन इन्हां ये ग्रंथां दियां जिन्हां ने मर्द प्रधान समाज नूं हमेशा जिहड़ी है वो प्रवानगी दित्ती है। हुण जदों असीं फिलासफरां की गल करिए, जदों असीं वैस्ट दे विच बड़े बड़े वड्डे चिंतकां की गल करिए तो चेस्टरफील्ड इंग्लैंड का वो ये गल लिखता, कहता औरत जिहड़ी है कुदरत की एक मज़ेदार गलती है। इस तरह औरत नूं निंददा वो, कहता वूमैन इज एन एग्रीएबल बलंडर, एक कुदरत एक मज़ेदार गलती है जिहड़ी औरत जिहड़ी है। जो एरिस्टोटल की गल करिए, जिसनों अरस्तू भी कहा जाता है, जगत प्रसिद्ध फिलासफर जिहड़ा है, वो कहता कि औरत एक अधूरा इंसान है। वूमैन इज एन अनफिनिश्ड मैन लेफ्ट स्टैंडिंग ऑन ए लोअर स्टेप इन द स्केल ऑफ डेवलपमेंट। मैन इज बाय नेचर सुपीरियर, मैन इज बाय नेचर सुपीरियर एंड फीमेल इंफीरियर। द वन इज रूल एंड अदर इज रूल। एक रूल करेगा, दूसरा जिहड़ा रूल मनेगा। मैन हमेशा सुपीरियर है, औरत जिहड़ी है हमेशा इनफीरियर है। मैन जिहड़ी औरत जिहड़ी है इनकैपेबल है विल की, उहदे विच इच्छा शक्ति घट है औरत की। ये एरिस्टोटल लिखता, मन्निया पन्निया फिलासफर है अरस्तू जिसनों कहंदा जांदा, कहंदा वूमैन इज इनकैपेबल ऑफ विल। इस करके वूमैन जिहड़ी है इसनों आज़ाद नहीं किया जा सकता। वूमैन एक अधूरा इंसान है तो स्त्री जिहड़ी है कदे भी जो डिवेलपमेंट की गल करिएगी यह हमेशा रुकावट रहेगी, हमेशा इंसान के मनुख के लोअर लैवल पर रहेगी औरत। तो इसनों कदे भी आज़ाद नहीं किया जा सकता, ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये इच्छा शक्ति की कमी। तो यही गल जी है अगे सॉक्रेट्स लिखता है। सॉक्रेट्स कहता कि मनुख जिहड़ा ये हुक्म चलाने वास्ते बने है तो जी औरत जी है ये हुक्म मनन वास्ते बनी है। ये सारिया कुल मिला के जो असीं ओवरऑल देखा जाए तो एक पिक्चर क्लीयर हो जाती है कि कुछ परसेंट औरतों को छड्ड के जो ये वूमैन एम्पावरमेंट दी लहरां चलियां, आज़ादी दी लहरां चलियां, कुछ फर्क पिया थोड़ा जा। लेकिन हजे भी जो है जो मनुख की सोच है, जो आदमी की सोच है औरत के प्रति लगभग सेम ही है जो पुरानी सदियां में सी। इसकी क्लैरिटी कितों होती है? हर साल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जी है एक डाटा पेश करती है क्राइम स्टेटस हर स्टेट का, हर कंट्री का, पूरी इंडिया का। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जिहड़ा है इसनों जिहड़ी है प्रकाशित करती है। इस साल की रिपोर्ट थोड़ी देर पहले 10-15 दिन पहले डेली सेल्सर में छपी सी रिपोर्ट J&K की पर्टिकुलरली। उसदे विच वो स्टेटस है क्राइम स्टेटस फॉर वूमैन इन इंडिया पर्टिकुलरली J&K 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ उस रिपोर्ट के अनुसार जी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, हजे कि ये रिपोर्टां जिहड़ियां आंदियां ये डाटे सही नहीं होंदे है, ये डाटे बड़े ही घट करके जिहड़े डाटे शो किए जाते हैं। उस डाटे के अनुसार भी अगर चलिए अज की डेट के विच 2020 का स्टेटस के विच 3414 केस वूमैन की एट्रोसिटीज़ J&K के 3414 जिहदे विच 249 के 247 केवल रेप केस हैं। ये 2020 का स्टेटस है। 2000 और बड़ी कमाल की गल है 2047 के विच केवल ते केवल एक जिहड़ा बलात्कार एक जिहड़ा रेप होया वो अननोन बंदे ने किया, बाकी 246 रेप जिहड़े ने नोन सन बंदियां ने, वो कोई नेबर सी, कोई रिश्तेदार सी, कोई कुछ सी। उसके बाद 784 एबडक्शन ते वूमैन नूं जिहड़ा अगवा करन दे 784 केस, मतलब एक दिन के 2 J&K के हजे भी वूमैन अगवा हो रही हैं। उसके बाद हैरान हो जाता बंदा जो ये देखता कि 9 डोरी डैथ दहेज दियां डेथां, दहेज करके औरत को मारा गया 9। अज भी इतनी एजुकेशन होने के बावजूद भी उस रिपोर्ट के अनुसार 9 डेथ अते 1500 2000 के कोल काल जिहड़ियां वूमैन नूं जिहड़ियां मॉलस्टेशन की जाती है। ये सारे के सारे एक क्राइम की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट तो क्लीयर हो जाता है कि औरत का स्टेटस हजे भी पुरखों की नज़र के विच, क्योंकि असीं इत्थों देख ली हर गाल जिहड़ी है औरत के नाम तो बनती है। हर गाल जिहड़ी गाल असीं आंदियां जांदियां सुनते रहंदे हां, ये गाल हर गाल औरत तो बनती है। सो कुर्बान जाइए, ये सारा दसना बड़ा जरूरी सी। कुर्बान जाइए गुरु नानक पातशाह तो, कुर्बान जाइए जिन्हां ने जिंदगी दे विच इतिहास दे विच वर्ल्ड हिस्टरी दे विच पहली बार अगर किसी ने आवाज़ उठाई है औरत के अधिकारां नूं लैके ते केवल गुरु नानक दे पातशाह, केवल गुरु नानक दे पातशाह। और बड़ी कमाल की उन्होंने जो आसा की वार की 19वीं पौड़ी के श्लोक के विच गल की, कहते जिस औरत नूं धार्मिक खेत्र में इतना निंदिया गया
जिस औरत ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ इतना ਨੀਵਾਂ तक ਲੈ ਕੇ उस औरत ने तू ही साडा जन्म होया, उस औरत के पेट विच ही साडी पालना होंदी है, उस औरत के पेट विच ही साडी रिश्तेदारी बनती है, उस औरत के राही साडा विआह होंदा है। और जदों एक औरत मर जाती है दूसरी औरत की ही भाल असीं करते हैं। उस औरत ने सारे राजियां फिलासफरां भगतां नूं जन्म दिता ते उस औरत नूं निंदिया क्यों कहंदे हो? भंड जम्मी है, भंड नीमी है, भंड मंगण विआह, भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले राह, भंड मूआ भंड भालीए। एक मर जाती है भंड इस्त्री मर जाती है, दूसरी की भाल करते हैं। भंड मूआ भंड भालीए, भंड होवे बंदा सो क्यों मंदा आखिए जित जमे रजान। भंडो ही भंड उपजै, इस्त्री तो इस्त्री भी उपज होती है। भंडो ही भंड उपजै, भंडे बाज ना कोई नानक भंडे बारा इको सच्चा सो। इतों एक परमात्मा की जूनी की गल भी आ गई कि इको औरत तो ही सारे जमे, केवल परमात्मा नूं छड्ड के। जित मुख सदा सलाइए भागा रत्ती चार, नानक ते मुख उजले तिस सच्चे दरबार। ना औरत ते ना इस्त्री, ना औरत ते ना मर्द, ये दोनों बराबर हैं जेड़े परमात्मा की सिफत सलाह करते हैं, जो बराबर। और इस नाल गुरु नानक देव पातशाह ने जिस वक्त पुराने समय जो गुरु पातशाह का प्रकाश होंदा है, जो गुरु पातशाह इस संसार के आते हैं, उस वक्त ये लड़ाइयां चलदियां सन। तो लड़ाइयां दे विच कहंदा सब तो ज़्यादा औरत नूं जिहड़ा उहनूं नुकसान होंदा सी। सब तो ज़्यादा औरत दे जिहड़ी पार्टी जित जाती सी, जिहड़ा राज जित जाता सी, वो औरतां दा बलात्कार करता सी, औरतां नूं जिहड़ा अपने नाल गुलाम बना के लै जांदा सी। ते गुरु पातशाह ने उस एपीसोड नूं भी सिरजिया, उसकी पीड़ा नूं समझिया। बाबर दे हमले गुरु पातशाह ने जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे दूर, मैला अंदर होंदियां हुण बह ना मिलन हदूर। उस पासा इस अगर दूसरे एंगल नाल भी देखा जाए कि उस वक्त गुरु पातशाह कहते जदों सियां भी आईयां लाड़े सोहन पास, हिंडोली चढ़ आईयां दंद खंड कीते रास, उपरों पानी वारी है झल्ले चिमकन पास। उस वक्त औरतां दा तुसीं हिसाब लगा लो, 1 लाख लैण बैठियां, लख लैण खड़ी, 1 लाख रुपया जब विआह के आंदियां सन, इतना उस वक्त भी कितना औरत का नखरा मनिया जाता सी। 1 लाख लैण बैठियां, लख लैण खड़ियां, गरी छुआरे खांदियां, मानन से जड़ियां गुरु पातशाह 3 गल सिलकां पाइयां, टुटन मोथरियां धन जोबन दोए वै गए। अगर इस तरीके के नाल भी अगर सिख कौम सोचे, अज दी बीबियां सोचन कितों गुरु पातशाह ने कढ़िया सी, असीं फिर उसे पासे फस के 1 लाख लैण बैठे। अज भी वही नखरे, अज भी वही नखरे। गुरु पातशाह चेतावनी ने 3 गल सिलकां पाइयां, टुटन मोथरियां, ये धन ते जोबन फिर वैरी होणगे, ये फिर वैरी होणगे। अगर असीं गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा इस्त्री औरत ने नहीं समझिया, ये मान महसूस नहीं किया, ये धन ते जोबन फिर वैरी होंगे, लै चले पट गवाए, ये फिर वैरी होणगे। इस दे नाल नाल गुरु नानक देव पातशाह कहंदे नारी पुरख, पुरख सब नारी, सब एको पुरख। नारी ते पुरख दोनों एक, दोनों एक, दोनों विच कोई भी बिल्कुल भी जिहड़ा अंतर नहीं है। तो जदों सती प्रथा की गल आई, जदों वो औरतां चीकदियां सन, करलांदियां सन, जो जिंदा साड़िया जाता सन, उन्होंने केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा ने यह आवाज़ उठाई कि सतियां इन्हां आखियन जो मड़ियां लग जलन, नानक सतियां आखियन जे बिरह चोट बन। जेड़े पति की याद दे, पति की चोट दे विच जिहड़ियां मर जांदियां, पति की बिरह दे विच जिहड़ियां मर जांदियां, पति के विराग दे विच जिहड़ियां मर जांदियां, उसनूं सती कहे। ये सती प्रथा नूं ठल पाई गुरु, ये नहीं गल्लां कर सकते। ये अपने जितना मर्जी ये हिंदू राष्ट्र की गल करन, ये गल्लां कर ही नहीं सकते कि साडे ग्रंथां दे विच धर्म बारे, औरत बारे की लिखिया गया। नहीं कर सकते गल्लां, ये नहीं गल कर सकते। साडे मंदिरां दे नाल जिहड़े नाच खाने होंदे सन, साडियां औरतां जिहड़ियां जिंदा साड़िया जांदियां सन, ये गल्लां नहीं कर सकते। इस नाल गुरु पातशाह ने दाज, जिहड़ी मैं हुणे गल कीती कि JNK 2020 दे विच 9 डेथां होईयां डोरी करके, उत्थे गुरु नानक देव पातशाह कहंदे, गुरु पातशाह गुरु रामदास पातशाह कहंदे कि ये दाज हर प्रभ मेरे बाबूला, हर देवो दान मैं दाजो। कि कहंदे होर मन मुख जे रख दिखलावे, कूड़ अहंकार कच पाजो। की करदे आं असीं? दाज है की है? रजे पुजे घर वाले भी दाज लैंदे, बड़े पढ़े लिखे बंदे भी दाज लैंदे, जिन्हों को रखने की जगह वो भी दाज लैंदे। क्यों लैंदे? कहते दिखाने वास्ते, ये मेरी नूह रानी लैके आई है, ये मेरा पुत्र लैके आया, ये मैनू ये मिले है, मैनू ये मिले है, मैनू ये मिले है। ये सारिया मिलनियां दी रस्मां सारा कुछ दिखाने वास्ते है। ये तो गुरु पातशाह कहते होर मन मुख दाज ते रख दिखलावे, कूड़ अहंकार कच पाजो। ये सारा कुछ अहंकार है, झूठ है, सारा कुछ व्यर्थ है। इतों गुरु पातशाह ने सारा औरतां नूं, औरत जात नूं इतना मान दे दिता। और इत्थे तक जो गल की, इस जग में पुरख एक है, होर सकते होर इहदे कोल वड्डी गल की करन। जदों भी भगती की गल की, जदों भी परमात्मा खसम की गल की, अपने आप को औरत करके संबोधन किया, इतना मान औरत नूं दिता।
जेकर इस समझिए। और नाल नाल गुरु पातशाह ने मनमुख की तुलना भी जी औरत नाल कर दी। मनमुख मैली कामणी कुलखणी कुनार पिर छोड़िया कर अपना पर पुरखे नाल प्यार तृष्णा कदे ना चुके जल्दी करे पुकार नानक बिन नामे कुरूप कसोनी पर हर छोटी पता। मतलब मनमुख इस्त्री मनमुख जो बंदा है उसकी तुलना भी गुरु नानक देव पातशाह ने इस्त्री के नाल कर दी। मतलब हर पक्ष के इस्त्री नूं मान दर्जा दिता। ये असीं भी जानते हैं कि इस्त्री जी औरत जी पंजा सिंह शामिल हो सकती है, कीर्तन नहीं करती दरबार साहब, वो एक अलग एस्पैक्ट है। असी इस्त्री पंज सिंह का गफ्फा भी देने असी इस्त्री जी लेकिन समझिए इस गल नूं, क्योंकि औरत जदों इस गल नूं समझ जाएगी कि साडियां औरतां ने गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा तो सेध लैके कितना मानमता जिहड़ा इतिहास सिरजिया है वो होर कौमां दी औरतां नहीं सिरज सकियां। बीबी भरसीन कौर का जिक्र मैं पहले भी बड़ी बार किया है। केवल 20-22 साल की औरत सी, 2 साल का अपना बच्चा जिहड़ा बेटी दी डांगा दे अगे रख के पहले बच्चे को शहीद करवाती है, फिर बीबी भरसीन कौर गुरु के मोर्चे आप शहीद होती है। बीबी हरशरण कौर 2 हुई। ये सारिया मान सी अपने अपनी विचारधारा के पर भी सानू गुरु पातशाह ने कितों चुक के बाहर कढ़िया सी। उन्होंने मान सी एक हरशरण कौर जी हिंदू परिवार की सी, जिसनों चुक के लै गए सन। बाद हरि सिंह नलवा ते जस्सा सिंह आलूवालिया ने छुड़ाया सी इन्हों। उसके बाद उन्होंने लैन तो इनकार कर दिता सी उस औरत को। फिर इन्हों के जत्थे में रही सी ते जदों जमरोद के किले के पर अटैक होने लगा सी, जमरोद के किले के पर जिस वक्त अटैक हो गया उस वक्त रात को उन्होंने कोल कोई चारा नहीं सी, क्योंकि हरि सिंह नलवा जिहड़ा वो पेशावर में सी ते उन्होंने कोल 2 सन। एक जी दीवार टुट गया, उस दीवार को असीं बंद करना है बोरियां लगा के। एक बंदा कोई चाहिए है जिहड़ा हरि सिंह नलवे नूं जाके सुनिया दे कि जे तू सवेरे तक ना पहुंचा तो जमरोद साडे उत्थों गया। तो बीबी हरशरण कौर ने जिम्मेवारी ली सी। बीबी हरशरण कौर ने कहा कि मैं जावांगी रात नूं, बाहर दुश्मन है, कहती मैं जावांगी। हरशरण कौर कहती मैं जावांगी, जे पेशावर जाके तोप के गोले का फायर होया समझ लेना मैं पहुंच गई हाँ, जे तोप का गोले का फायर नहीं होया तो समझ लेना मैं दुश्मन की जी है भेटा चढ़ गई। ये बीबियां सन, बीबी हरशरण कौर, बीबी भरसीन कौर, बीबी भानी जी, माता भाग कौर। ये उन्होंने धार्मिक चेतना सी, धार्मिक चेतना सी तां जाके हरि सिंह नलवे वर्गे ते भाई का तारू सिंह नलवे करैक्टर बाहर सिर के आते। हरि सिंह नलवे के पिता भी जल्दी चढ़ाई कर गए, हरि सिंह भाई तारू सिंह की पिता भी जल्दी चढ़ाई कर गए। इन्होंने तैयार करने वाली इन्हों की माता सी। तो जिस वक्त साड़ी औरतों के विचों ये चेतनता नहीं रहेगी ना कि सानू गुरु पातशाह ने कितना मान बख्शिया, तो तब तक जी सानू असी इस पासे वाला नहीं लग सकदियां। एक लास्ट 2-4 मिनट की गल कह के कि जदों औरतों के धार्मिक चेतनता खत्म हो जाए, औरतों के धार्मिक सिद्धांत खत्म हो जावन, औरतों के धार्मिक दृढ़ता खत्म हो जाए, क्योंकि विद्वान कहते हैं कि द हैंड डैट रॉक्स द क्रैटल रूल्स द वर्ल्ड। औरत जेड़ा हाथ बच्चे के भंगूड़े को जन्म देता है वही हाथ राज कर सकता है। जिस घर के जपजी पढ़ी जाती है, जिस घर के माँ जपजी दियाँ लोरियां के नाल बच्चा पालती है, उस घर के फिर हरि सिंह नलवा से जस्सा सिंह आलूवालिया पैदा होते हैं। लेकिन जिस घर के सिद्धांत निकल गए, जपजी निकल गई, केवल टीवी ते टीवी आ गया, उस कौम का फिर जो है, क्योंकि विद्वान कहते हैं कि कोई चीज़ अगर किसी कौम के भरनी है ना, तुसी वो चीज़, वो गुण, वो करैक्टर, वो असूल, वो धर्म, वो सिद्धांत उस औरत के भर दिओ। और एक बड़ी कमाल की गल कह के मेरे को समा हो गया। डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने एक गज़ल लिखी है जालिम रहेला। उस कहता जदों तैमूर नूं हरा के जिहड़ा गुलाम कादर रहेला दिल्ली के तख्त से बैठा, तो दिल्ली के तख्त से बैठ के वो गल कहता अपने वजीर नूं सद के कहता कि मैनूं एक चीज़ दस, मैनूं एक तरीका दस, तू बड़ा समझदार है कि मैं चाहना कि मेरे को तैमूर जो है, तैमूर के होर कोई भी राजा दिल्ली के तख्त मेरे को राज ना ले, तो मैनूं कोई तरीका दा। उस वजीर ने कहा उसनूं गुलाम कादिर रहेला नूं, कहता जे उस धर्म दियां औरतां दे विच, तैमूर दियां औरतां दे जे धर्म, जे गैरत, जे अणख खत्म हो जाए ना, तो तेरा राजपाक जब तक तू जिंदा रहेगा तेरा राजपाक कायम रहेगा। फिर गुलाम कादिर रहेला ने एक नाटक खेलिया, उसने अपनी तलवार में बेबयान करके तख्त के पर लेट गया, तो तैमूर दियां सारियां औरतों ने कहता मेरे सामने डांस करो। किसी ने डांस करना शुरू किया, किसी ने रोना शुरू किया, किसी ने नमाज पढ़नी शुरू की। बड़ी देर नाटक चलता रहा, थोड़ी देर बाद खड़ा होकर कहता रुक जाओ। तो डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने जड़ा गुलाम जड़ा जालिम रहेला दे विच इसनूं कोड किया, कहता वो अगे लिखता है, कहता मेरा मसलत पे सो जाना बनावट थी तकल्लुफ था कि गफलत दूर है शाह सफर ईरानी लश्कर से,
ये मकसद था मेरा कि इनमें से तैमूर की बेटी मुझे कातिल समझकर मार डाले मेरे खंजर से, मगर ये राज उठ गया जमाने भर से कि गैरत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से। कहता मैं सो गया, मैं बनावटी सुता था, मैं सुता नहीं था, मैं लेटिया था कि गफलत दूर है शाहे सफर ईरानी लश्कर से, कि सानू जिहड़ा है जिहड़े शाहे जिहड़ा ईरानी लश्कर है जिहड़ा साडा है, साडी सी राजे आ, असीं सूरमे आ, साडे तो गफलत दूर रहिंदी है। कहता मेरा मकसद सी, ये मकसद था मेरा कि इनमें से कोई तैमूर की बेटी मुझे काफर समझकर मार डाले मेरे खंजर से, कि मैं अखा बंद करके लेट गया, तलवार मैं बेम्यान करती कि मेरा मकसद ही कोई तैमूर की बच्ची उठे तो मैनू काफर समझ के मेरे ही खंजर मैनू मार दे, ये मकसद था मेरा। तो इनमें से तैमूर की बेटी मुझे काफिर समझकर मार डाले मेरे खंजर से, मगर ये राज उठ गया जमाने भर से कि गैरत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से, कि गैरत नाम की चीज़ तैमूर दी बेटियां दे विच, तैमूर दी नूहां दे विच, तैमूर दी औरतां विच चली गई है। हुण मेरे राज भाग नूं कोई खतरा नहीं। तो सतगुरु कृपा करो, समा मेरा पूरा हो गया। जब तक साडियां औरतां नूं, साडियां इस्त्री नूं, साडियां भैणां नूं, साडियां मावां नूं यह एहसास नहीं होएगा कि केवल ते केवल एक ही इनकलाबी, एक ही क्रांतिकारी, एक ही रेवोल्यूशन आई है जिसने औरत नूं पूरा सपोर्ट किया है। जितने मैं गल की है क्राइम रिपोर्ट की, सब तो वध जिहड़े क्राइम हो रहे, एक रेप के क्राइम हो रहे, तो गुरु पातशाह ने पर त्रै रूप ना पेखै नेत्र, वेल पराही चूहे जे करे चोरी बुरियाई, हंस चलिया तू पिछे रही। ये गुरु पातशाह ने 4 करैतां विच शामिल करता कि पराई स्त्री नहीं देखना। और बड़े कमाल की गल, इतिहास देख लो, सफर सारा इतिहास गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के समय ते महाराजा रणजीत सिंह के समय, बाबा बंदा सिंह बहादुर के समय एक ही बंदे नूं मौत की सजा दी जाती सी जिहड़ा रेप करता सी, जिहड़ा औरतां दे नाल छेड़छाड़ करता सी, चाहे वह बस्सी दा पठान सी। जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने अपने पुत्र नूं भेजा, देवकी ब्राह्मण की बच्ची नूं छुड़ा के लिया अजीत सिंह नूं, जदों बंदा सिंह बहादुर पंजाब दे विच आया, उस वक्त कपूरी दा नवाब सी, उहदा पुत्र सी, उसनूं बंदा सिंह बहादुर ने मौत दे घाट उतारिया। जदों हरी सिंह भंगी का समा आया, ब्राह्मण हरीचंद आके कहता कि जिहड़ा हिंदू जिहड़ियां औरतां चुक के लै जांदे साडीआं बच्चियां नूं, अदों उस्मान दे राजे ने उसने जिहड़ा कतल किया। तो जदों महाराजा हरी सिंह नलवे का जिस वक्त राज आंदा 1815-1819 दे विच, अदों उन्हां हिंदुआं नूं सजा दित्ती है जिहड़ा औरतां दे नाल छेड़छाड़ करदा सी। सतगुरु पातशाह रहमत करन, सत्य प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।